भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टिकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 8, Prayers of Kunti and Parikshit Maharaj Saved, text number 32. So let us begin. केचित् अहोरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियाय वसन् वयमलायस्येव कन्दनम्। केचित् अहोरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियाय स्यान्ववाय मल्लियस्येव चन्दनम्। केचित् अहोरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियाशयना वयवेव मल्लयस्यैव चन्दनम्। अक्षय श्लोका पढ़ो। चिदाहुरजज्जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मलयस्यैव चन्दनम्। नेक्स्ट आस्था पढ़ो। केचित् अहोराजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यन्वावये मलायस्येव चन्दनम्। नेक्स्ट पूजा माता जी आप पढ़ो। केचिद् अहोरजं जातं पुण्यश्लोककीर्तये यदो प्रियस्यान्वये मल्यस्यैव चन्दनम्। Anyone else is there? Word to word meaning. Kechit, someone, ahu, says, ajam, the unborn, jatam, being born, punnyshlokasya, of the great pious king, kirtaye, for glorifying, yadaho, of the king Yadu, priyasya, of the dear, anvavya, in the family of malayasya, Malya hills, eva, as chandanam, sandalwood. Translation and purport by Sri Prabhupada, Jaya Prabhupada. Some say that the unborn is born for the glorification of pious kings, and others says that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appear in the Malya hills. तो क्या कह रहे हैं? कोई कहते हैं कि जो unborn is born for the glorification of pious kings, कि जो पुण्य राजा है, क्योंकि he is taking birth in a certain family like that in Yadu dynasty. So maybe to please them or maybe to glorify them because such a person is born in their dynasty. और you appear, आप क्या किस तरह से लग रहे हो? जैसे एक चंदन की लकड़ी है माल्या हिल्स में, ठीक है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं इसके बारे में, कहते हैं because the Lord's appearance in this material world is bewildering. ये हम लोगों ने कल पे इस पे डिस्कस किया था कि how it is so bewildering कि he is born, still unborn, मतलब एक्टिव है फिर भी इनएक्टिव है, मतलब like that we discussed yesterday. So it says कि it is bewildering, quite bewildering. So the Lord's appearance in this material world is bewildering. There are different opinions about the birth of the unborn. अब कोई unborn है उसका जन्म, oh, quite sarcastic. So in the Bhagavad Gita, the Lord says that he takes his birth in the material world, although he is the Lord of all creations and he is unborn. So there cannot be any denial of the birth of the unborn because he himself establishes the truth. But still there are different opinions as to why he takes his birth. That is also declared in the Bhagavad Gita. He appears by his own internal potency to re-establish the principles of religion and to protect the pious and to annihilate the impious. परित्राणाय साधुना। तो यहाँ पे आता है कि भगवान क्यों डिसेंड होते हैं? To establish the dharma and to annihilate the impious people. So that is the mission of the appearance of the unborn. भगवान का कार्य तो क्या है कि जीवात्माओं को आकर्षित करके किस तरह से भगवत धाम भी लेके जाना और जो पापी लोग हैं उनका संहार भी करना. So still it is said that the Lord is there to glorify the pious king Yudhishthira. फिर भी यहाँ पे बोला जाता है कि भगवान वहां पे थे जैसे पायस राजा युधिष्ठिर महाराज, उनका ग्लोरी गुणगान बढ़ाने के लिए. Lord Krishna is certainly wanted to establish the kingdom of Pandavas for the good of all in the world.
when there is a pious king ruling over the world, the people are happy. जैसे हम लोग अभी रामनवमी था, तो भागवतम में भी वर्णन है कि रामायण का उसमें एक श्लोक है 9:20 और 9:11-20, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द श्लोक इज, कि प्रपात का भी मैं लेक्चर सुन रही थी उसमें, तो प्रपात बताते हैं, कहते हैं कि जो राम जी का राज्य था, दैट इज लाइक अ सो परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इतना परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति से पहले कोई जवान मरता नहीं था, मतलब डेथ भी सिस्टमेटिक थी, कि मतलब कि किसी पिता के सामने उसके पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, और अगर ऐसा होता था तो राजा के पास जाके कंप्लेन करते थे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में डिफॉल्ट है, दैट्स व्हाई माय सन डाइड बिफोर मी। और ये तो नेचर के हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर के हिसाब से तो जिसकी उम्र हो रही है उसको पहले जाना चाहिए, मतलब जो बूढ़ा हो रहा है तो उसको पहले जाना चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि जवान व्यक्ति पहले मर जाए। तो ऐसा कभी होता तो वो राजा के पास जाके कंप्लेन करते थे कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, आप अच्छे से रूल नहीं कर रहे हो। अब अगर अब देखा जाए तो बच्चा, छोटा बच्चा भी मर जाता है पहले ही, जमाने की बात तो भूल जाओ आप, बच्चा पैदा होता मर जाता है। तो दैट मीन्स द रूल इज नॉट डन बाय द पायस पीपल, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, जो रूलर्स हैं वो पायस नहीं है, प्रॉपर यज्ञ सैक्रिफाइस नहीं है, दैट्स व्हाई द प्रजा आर नॉट हैप्पी। प्रजा इज लाइक द सन एंड डॉटर्स ऑफ द किंग, एंड इन प्रजा इवन द एनिमल्स कम्स इन द प्रजा, इवन एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन का उत्तरदायित्व है राजा का। और यहाँ पे जानवरों की क्या बात करें, इधर इंसानों को प्रोटेक्शन नहीं है तो जानवरों को कहाँ मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग। स्लॉटर हाउसेस खुले जा रहे हैं, कितनी सरकार ने रोक लगा दी, तो इंसानों का तो भूल ही जाओ कि उनको क्या मतलब प्रोटेक्शन है। So that means the proper rule is not there. So that the Lord wanted to that ruled by the pious people, that is Pandavas. So when the ruler is impious, the people are unhappy, and this is the Kali Yuga. You see, बाहर के देशों में अभी कोरोना का सिचुएशन स्टिल गेटिंग बेटर, टेम्पल प्रोग्राम चल रहा है। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इतना वर्स्ट सिनेरियो हो गया, तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। वन आई वाज सीइंग वन वीडियो, वन लेडी डॉक्टर वाज क्राइंग, शी सेइंग वी फेल्ट नेवर सो हेल्पलेस, इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं किया कि ऑक्सीजन लेके हमको घर जाना पड़ता है, एंड वी स्टिल कांट पे मच अटेंशन। सामने सामने बिस्तर नहीं है, लोग मर रहे हैं, शमशान में जगह नहीं है, so such an helpless condition, why these things are happening? पहले तो लाइक एक तो इतना रिस्ट्रिक्शन किया नहीं गया, ठीक है, केसेस बढ़े हैं, कहीं पे लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, यू नो, एंड इट्स लाइक पीपल आर नॉट इवन टेकिंग केयर, लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हमें सैनिटाइजर, कुछ प्रॉपर डिस्टेंसिंग कुछ मेंटेन करने, दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन। देयर वाज अ होली फेस्टिवल, पीपल वेंट टू द होली फेस्टिवल इन अ बिग, really big group is there, and then the Kumbh Mela is there, another thing. So it's like so much gathering was outside. अगर पहले ही थोड़ा ध्यान दिया तो सेकंड वेव शायद आती ही नहीं ना पहले से, क्योंकि इंडिया का रिकवरी रेट अच्छा है, बिकॉज एंड स्टिल यहाँ पे पहला कोरोना का टाइम बहुत अच्छे से इट्स लाइक कवर भी हुआ, ऑब्वियसली बाकी देशों के मुकाबले तो कम ही रहा ना। अब नाउ इंडिया इज इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, so that's the proper management, administration is not there. तो प्रजा लोगों ने भी तो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई ना, जब रूल ही इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो तो फिर लोगों को भी देखो, वही ना कहते हैं बातों के लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बोल बोल के आप कितना लोगों को सिखा दोगे, खुद से कोई अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाए तो सरकार कुछ करे, लोग कुछ करें, लोगों को पहले किया नहीं, अब तो हमारे यहाँ अब कई जगह पे तो लॉकडाउन है, हमारे यहाँ पे तो मार्केट लाइक ना वीकली ऐसे ओपन किया है। well I'm just telling कि the proper things are not there, so it's happening, people are unhappy, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, people are not happy. So in the age of Kali, in the most cases the rulers are impious are rulers. अब अमेरिका में लास्ट टाइम when the corona was there वहां पे उस टाइम कोरोना के दौरान ही रेसिज्म भी चल पड़ा था वहां पे, मतलब लोगों ने रेसिज्म ब्लैक एंड व्हाइट का भी सिस्टम चल पड़ा, वहां पे लड़ाई हो गई, कम्युनिटी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इतना वो हुआ। इट्स लाइक द रूलर इज impious, ruler is not pious, therefore the citizens are also continuously unhappy, इसलिए दुखी हैं लोग। But in the case of democracy, the impious citizens themselves elect their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. अब देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो लोग अपने रूलर खुद ही चुन रहे हैं, तो फिर किसी को क्या दोष दे रहे हो आप? वही बात आ गई ना, कहते हैं जो ऊंट है वो ऊंट को ही वोट डालेगा, तो जो एक डॉग है डॉग विल इलेक्ट द डॉग। So similarly, the people are impious, they elect the impious person. So if you want a right ruler, तो one should give a vote to the right person. So that should be there. मगर लोग खुद ही impious हैं तो लोग चुनते भी चयन भी गलत राजा का कर देते हैं। That's why they're unhappy.
So Maharaj Nala was also celebrated as a great pious king, but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, Maharaj Yudhishthira is meant here to be glorified by Lord Krishna. Maharaj Nal थे, वो भी pious king थे, मगर भगवान कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं, ठीक है? तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ज्यादा यहाँ पे glorified किए जा रहे हैं because he was in connection with the supreme person. The Lord has already glorified King Yadu, having taken birth in his family. अब ऐसे परिवार में इतना भगवान स्वयं प्रकट हो तो वो परिवार तो खुद स्वयं में ही glorified हो जाता है. So the Lord had already glorified King Yadu, having taken birth in the family. Although he is known as Yadava, Yadu Veera, Yadu Nandana, is always independent of such obligations. He is just like the sandalwood that grows in the Malya hills. Tree can grow anywhere and everywhere. Yet because the sandalwood trees grow mostly in the area of Malya hills, the name sandalwood and the Malya hills are interrelated. ठीक है, अब पेड़ तो कहीं पे भी उग सकते हैं मगर जो चंदन के पेड़ है वो जनरली मलय हिल्स में ज्यादा पाए जाते हैं. So that's why they are interrelated. तो भक्त है तो भगवान साथ में पाए जाते हैं. हाय बात समझ में. So therefore the conclusion is that the Lord is ever unborn like the sun, and yet it appears as the sun rises on the eastern horizon. As the sun is never sun of the eastern horizon, so the Lord is no one's son. तो सूर्य बेशक ईस्टर्न होरिजन से उगता है, इसका मतलब ये नहीं कि सन सूर्य ईस्टर्न होरिजन का पुत्र है, नो, यू नो. तो इसी तरह से भगवान किसी से प्रतीत होता है कि इनके इनसे पैदा हो रहे मगर उनके पुत्र नहीं है, ही इज द फादर, ठीक है. एंड एवरीथिंग दैट वी, सो दैट्स हाउ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्स. सो आई थिंक समय इतना है नहीं है तो आई विल स्टॉप हियर ओनली. So any of rest we will discuss tomorrow. So any of you have any questions or comments, so please go ahead. हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे, कमेंट करना चाहे? यस, हरे कृष्ण. ये अक्षय प्रभु तो नहीं है, बट ये सही है क्या? लिटिल लाउड अक्षय. मतलब ऐसा जी ऐसा कुछ कहना तो नहीं है, मतलब वो एक कि पायस पीपल ऑलवेज इलेक्ट पायस, मतलब अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो इट इज ऑलरेडी अ बैड सिस्टम एक्चुअली. तो उसमें तो हमेशा ही पायस रूलर्स आने के तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं. यस. तो हम उसे कभी भी राम राज्य से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना माता जी. Obviously we cannot, but we can establish the Ram Rajya. How? As Mahatma Gandhi says, be the change that you want to see in the world. So it starts with oneself. So when we will be the change, we try to preach people. तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भावनामृत की ज़रूरत है. So that's why it says it's an urgent need of Krishna consciousness. So we have to spread this. यहाँ तो इवन लोग तो ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जिनको राम का नाम ही लेना पसंद नहीं है. Yeah, it is there. That's why I say the change begins from oneself. हम लाना चाहे revolution, we can bring the revolution. The thing is, we have to be serious. We have to take up this process quite seriously. Preach to the people, and जितना ज़्यादा प्रचार होगा, the rulers will be good. Come, as Narendra Modi, he chanted Hare Krishna Mahamantra. See, आज तक किसी ruler ने ऐसा नहीं किया. So somewhere the piety is there. They are supporting ISKCON, so that's fine. That is favorable. कोई कितना भी कर रहा है, that is favorable. Fine action. So we have to preach as much as we can. Preach in the sense, first आप भी कृष्ण भावनित बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रचार कीजिए. So that's how the change can come. अभी तो भक्तों की गिनती कितनी होगी? 700 billion में, very few, insignificant के बराबर है. So that's why there is a lot of work to do. तो हमें बहुत कार्य है हमारे सिर पे, प्रचार करना है, भक्त बनना है. ठीक है. Yes, Akshay. So first become devotee and try to preach as much as you can. In your locality itself, people will change. Okay. कहीं से को शुरुआत करनी है तो कहीं से तो करनी है. तो छोटे छोटे से ही बड़ा बनता है. तो that's how we should do. That's why devotees are doing. They are taking risk. They are going on Harinam Sankirtan, distributing prasadam. They are going on. चल रहा है तो हमें करना है वो. ठीक है.
So that's how the Ram Rajya can establish, by making people Krishna conscious all around and making aware of them this Krishna conscious. So that way we can do. Okay, और किसी का कोई प्रश्न है? Yes. Anyone else having any No, question? Mataji. Okay, no. Okay, so if nothing, then we can stop here. So तो रामायण रीडिंग इज एट 4 to 5 in the evening. तो 4 से 5 बजे रामायण रीडिंग रहेगा और शाम को 8 बजे भगवद गीता क्लास. आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, तो कल इवनिंग की क्लास आई डोंट नो, आई माइट हैव टू गो टू जम्मू. तो मुझे शायद जाना है बिकॉज परसों देयर इज अ मैरिज सेरेमनी, so I have to go. So Sunday evening there won't be any class. So morning as usual we will be listening to the class. कुछ extra class हम लोग सुनेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे. तो Sunday evening might not be their class because I think evening में बारात है, so I think in evening I have to go. And Monday, yeah, Monday तो अभी दूर है, तो कल और परसों का है. तो कल शाम का I'm not sure, we'll let you know. ठीक है, आज शाम को तो क्लास है, शेड्यूल है, तो आप लोग ज्वाइन करिए एज इट इज. और आज एकादशी है, तो ज्यादा से ज्यादा जप करने का प्रयास करिए. 32 करें, 32 नहीं तो कम से कम 25 राउंड करिए, 20 कीजिए. मींस व्हाटएवर एक्स्ट्रा राउंड्स यू कैन डू एंड डू द रीडिंग एंड हियरिंग एंड try to be Krishna conscious. Okay. Okay then, so we'll take leave now. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, 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 Hare Hare. ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल द समबडी की जय. बाबा जी एकादशी, कामदा एकादशी, so कामदा एकादशी की जय. Hare Krishna. Thank you everyone. See you all in the evening for Ramayana or maybe in the Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna. माताजी रामायण कब कितने बजे? 4 बजे. आपको फ्री रहेगा ना 4 बजे? जी 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 क्योंकि माताजी. दोपहर को फिर आपको ही बिजी होता है आई थिंक. जी जी जी. मुझे तो दोपहर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दोपहर को कर सकते हैं. अगर आप 2 बजे नहीं, फ्री हो, ठीक है, 2 बजे कोई भी ज्वाइन कर सकते हो. हाँ, 2 बजे भी फ्री हो जाते हैं वैसे तो, जैसे आपको ठीक लगता है. बट आई थिंक आज से ही क्लास होती है. जी कोई बात नहीं, आप 4 बजे कर लीजिए. तो 4 बजे करिए, सबको फ्री रहता है तो दैट्स फाइन. जी जी 4 से 5 आराम से पढ़ सकते हैं, मुझे भी थोड़ा फ्री रहता है उस टाइम. फ्री तो खैर आई कैन गेट द टाइम. ओके देन, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.